Hello, listeners. Welcome again in the online class of zoology. And today's subject is fish biology, and the subtopic is musculature in fish, and it is part 3. I hope you understood well the part 1 of musculature and part 2 of musculature. As I have already told you that in fishes there are 3 types of muscles: red muscles, pink muscles, and white muscles. And in the previous class, I told you about their arrangement also. And I should tell you, we should revise that when the fish swims in a constant speed and it is maintaining that speed, then red muscles are used. But in case if fish wants to swim faster, then white muscles also participate in it, and the muscles become fatigue. In case if white muscles are also used, they fatigue very soon. In this particular diagram, you can see the fish, and we should further explain that the 2 blocks of muscles which are present in the fish, we can explain it in another way also, because in the previous class I told you that there are 4 quadrants of muscles. When we divide it for our convenience, we can divide it into 4 quadrants. Now in this case, in another way, we can say that there are 2 blocks of muscles. Now if the muscles are lying on the dorsal side of the horizontal septum, then these muscles are called apexial muscles. And in case if the muscles are present, if the blocks of muscles are present below that horizontal septum, then they are known as hypaxial muscles. There is diagrammatic representation, that is in red color. You can very well see that in the middle there is a cut section of vertebra, and you can see the horizontal septum as well as vertical septum, and above the horizontal septum there are 2 blocks of muscles which is labeled as apexial muscles. Similarly, below the horizontal septum there are 2 blocks which are known as hypoaxial muscles. Hypaxial muscles. It is very clear. And similarly, you can see the fish here, where you can see the striations very clearly. You can see the blocks of muscles which are myotomes, and it is clearly indicating the septa between them. And in the diagram there is apexial musculature and below hypaxial musculature. It is very clear. Now you can see that in the bold diagram, you can see how the muscles are arranged. And it is important to know that the contraction within an arrangement of apexial and hypaxial muscles causes the body of the fish to bend. बिकॉज लोकोमोशन में हम जब करेंगे आगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, और उस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के कारण ही फिश इज़ एबल टू स्विम प्रॉपरली, है ना. कैसे इंटरलॉकिंग तो मैंने आपको बताया ही कि कैसे मसल्स का इंटरलॉकिंग होता है, और नेचुरली इंटरलॉकिंग होने की वजह से जो फिश का जो एक
जो मूवमेंट है, अंडुलेटिंग मूवमेंट है, वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है। नाउ ये चीज़ देखिए आप, थोड़ा सा मैं आपको फिर से अपन रिवाइज़ कर लेते हैं। जो भी मैंने आपको अभी बताया है, डायग्राम में जो बताया है वही चीज़ इसके अंदर है, तो वो थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं वापस से। The muscles of the upper half of the body are called apaxial and those of the lower half are called hypaxial. अब इसमें देखिए सैल्मन का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि सैल्मन का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इस फिश के अंदर पर्टिकुलरली 70% से ज़्यादा मस्क्यूलेचर है। तो सैल्मन आर अ पर्टिकुलरली गुड फिश फॉर स्टडिंग द बेसिक शेप ऑफ फिश मसल बिकॉज the coloration of their muscles allows you to see the edges of each myotome, है ना। इसीलिए हमेशा इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि सैल्मन का एग्जाम्पल लेकर के जो मस्क्यूलेचर के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं वो बताए गए हैं, क्योंकि उनका जो कलरेशन है, उनके जो एजेस है, या उनके जो मस्क्यूलेचर का जो पूरा एंगल्स हैं वो बहुत क्लियरली हमको नज़र आते हैं। Now, this is again a very good diagram to show about the musculature in fish. इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रिएशंस हैं ज़्यादातर एरिया में, जैसे एब्डोमिनल कैविटी का ये बताया हुआ है आपको नीचे, और एब्डोमिनल कैविटी के बाद में ये ऊपर जैसे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिएशंस बताई हुई हैं, ये पूरा जो पोर्शन है ये वाइट मसल्स का है, और जो छोटा सा चंक आप वापस इधर देख रहे हैं एंगल्स पे, वो जो कि डार्क ब्लैक कलर का है, ये एक्चुअली डार्क मसल्स कहलाती हैं, जो कि रेड मसल्स हैं। हालांकि इसमें ये ब्लैक कलर दिखा रहा है डायग्राम में, बट इट इज़ रेड इन कलर, ठीक है। और रेड कलर में आपको बताया ही था आपको कि रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ वेस्कुलराइज्ड। बहुत सारा इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और उसमें ब्लड फ्लो प्रोफ्यूजली होता है, इस वजह से ये रेड मसल्स दिखती हैं। और रेड और वाइट के बीच में यू कैन सी द वाइट पोर्शन, वो कि जो पिंक मसल्स कहलाता है। अब लाइट मसल्स जो कि वाइट मसल्स होती हैं और पिंक मसल्स होती हैं, इसमें आप देखिए कि ज़्यादातर जो फिशेस में इसमें जो प्लेंटिफुल मसल्स होती हैं, वाइट मसल्स ज़्यादा होती हैं, वो पूरा जो ज़्यादा एरिया वही कवर करती हैं, मेकिंग डीप स्केलेटल मसल इन स्पाइनल एंड हैपैक्सियल मायोमेयर्स, ठीक है। अब एपेक्सियल और हैपैक्सियल मायोमेयर्स में ज़्यादातर ये वाला मसल्स होती हैं, वाइट मसल्स होती हैं। और ये जो वाइट मसल्स होती हैं ये पुअरली परफ्यूज्ड होती हैं, लेकिन कब यूज़फुल होती हैं, जब उसको बहुत तेज़ स्विमिंग करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये एनारोबिक होती है और इसमें जल्दी फटीग डेवलप हो जाता है वाइट मसल्स में, ठीक है। अगर अपन रेड मसल्स की बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो ये वाइट स्केलेटल मसल्स के सुपरफिशियल होती हैं, एंड जो रेड मसल्स होती हैं इसमें इनका जो फैट कंटेंट होता है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और इसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो सेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स वो ज़्यादा होते हैं। और जो रेड मसल्स होती हैं इनका जो नैरोअर मसल सेल्स होता है दे आर सपोर्टेड बाय बेटर वेस्कुलर सप्लाई। ये मैं अभी आपको बता के चुकी हूँ कि इसका जो वेस्कुलर सप्लाई होता है वो बेटर होता है वाइट मसल्स से। अब डायग्राम में जो ये एक्सियल मसल है इसमें आप देख सकते हैं कि जो नंबर 1 है दीज आर द रेड मसल्स, और जो नंबर 2 आप देख रहे हैं, कलर में देखो आप डिफरेंस देख रहे हो ना, जो रेड मसल है उसका आराम से रेड कलर बताया हुआ है, जो कि आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो वाइट मसल्स हैं जो कि फास्ट टाइम पे यूज़ होती है या फास्ट स्विमिंग में यूज़ होती हैं, वो वाइट कलर की हैं। और बीच में जो ग्रीन कलर है उससे ये बताया हुआ है कि वो कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू इनके मसल्स के इंटरस्पर्स्ड होता है बीच बीच में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली, है ना। अगेन फिर से हम अगर डिफरेंस देखें डार्क एंड लाइट मसल्स का, तो डार्क और रेड मसल इन ट्राउट एग्जाम्पल दिया हुआ है, या और दूसरी जो फ्यूसीफॉर्म फिशेस होती हैं इज़ लोकेटेड जस्ट बीनीथ द स्किन,
है ना। वो ये मैं आपको पहले भी 2 डायग्राम्स में आपने क्लियरली देखा है कि एकदम स्किन के नीचे जो बैंड होता है वो रेड मसल्स का छोटा सा बैंड होता है। अब ट्राउट में दिस इज़ अ मिडल बैंड ऑफ मसल्स। ट्राउट के अंदर आप देख रहे हैं कि मिडल ईजीली डार्क कलर का आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ट्यूना एक एग्जाम्पल है फ़िश का, और जो दूसरी फ़िशेज़ होती हैं ट्यूना और दूसरी फ़िशेज़, उसमें जो मसल्स होती हैं डार्क मसल्स या रेड मसल्स वो बहुत एक्सटेंसिव होती हैं, बहुत सारी प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर फिशेज़। अब डार्क मसल का फिर से आप देख लीजिए कि डार्क मसल कहाँ यूज़ होती है, सस्टेन्ड स्विमिंग में, और उसमें हाई लिपिड कंटेंट होता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है। नाउ वी कम टू दी मस्क्यूलेचर बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट ग्रुप्स में। अब सबसे पहले अगर हम एग्नेथन्स में देखें तो ये देखिए कितना क्लियर डायग्राम है एग्नेथन्स का। इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से, देखिए इसमें मसल्स की वही उस तरह का जो शेप है, यहाँ पे लेटरल लाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, और उसमें ऊपर सेक्शन दे रखा है जो कि एपेक्सियल का है, नीचे हाइपैक्सियल का सेक्शन है, और इसमें सिंपल स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, और मायोटोम्स जो मायोमियर्स होते हैं वो डब्लू शेप्ड होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डब्लू अल्फ़ाबेट शेप का इनका अरेंजमेंट होता है ना, जिसमें कि जो इनर जो होता है, इनर जो फोल्ड होता है वो टुवर्ड्स कहाँ होता है, याद है आपको, इट इज़ टुवर्ड्स द हेड, और जो आउटर जो इसके होते हैं फोल्ड्स, डब्लू के जो आउटर फोल्ड्स होते हैं वो कहाँ पॉइंटेड होते हैं, टुवर्ड्स द टेल, है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ हैं जो कि आपको नहीं भूलना है मस्क्यूलेचर को लेकर के। और इसके अंदर जो मसल्स का अरेंजमेंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब वो हर सेगमेंट में यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं। तो ये तो है एग्नेथन्स के बारे में, ठीक है। एग्नेथन्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि विदाउट जॉज होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉन्ड्रिज थाइस। फिश का जो है कॉन्ड्रिज थाइस कौन सी फ़िश होती हैं, वो फिशेस जिसके अंदर कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, ठीक है। तो उसमें कॉन्ड्रिज थाइस में क्या होता है कि उनके जो मायोट्यूब्स होती हैं उनका जो नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो मायोमियर्स होते हैं या मायोट्यूब्स होती हैं उनका नंबर फिक्स्ड होता है, और उनका जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर तरीके से उनमें ग्रो करती हैं। वो जो मसल फाइबर्स होती हैं वो कैसे होता है, कैसे ग्रोथ उनकी अकर होती है, इन डायमीटर एंड लेंथ, ठीक है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, बास्किंग शार्क का एग्जाम्पल है। अब इसमें बताया हुआ है कि साइड व्यू में किस तरह से इसकी मसल्स दिखती हैं और क्रॉस सेक्शंस में कैसे दिखती हैं वो आप देख लीजिएगा। और जो मायोफाइब्रिल्स हैं, जो यानी कि जो मसल फाइबर्स हैं वो किनसे डेवलप होते हैं, कौन सी सेल्स होती हैं, वो कहलाती हैं मायोब्लास्ट्स। और ये देखिए मायोट्यूब का भी इन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इसमें भी इन्होंने क्रॉस सेक्शन का भी बताया हुआ है, और ये डायग्राम जो है इसके अंदर प्रॉपर एक मायोट्यूब का बताया हुआ है कि किस तरह से अरेंजमेंट होती है। फिर ये फ़िश में से ये लाइव फ़िश लेकर के और इसमें से ये डायग्राम, ये फ़ोटोग्राफ खींची हुई है, और इसके अंदर ये क्लियरली जो है वो शार्क का बताया हुआ है कि किस तरह से मसल्स जो हैं वो अरेंज्ड होती हैं और किस तरह से वो हमें दिखाई देती है। नाउ वी कम टू बेसिक स्ट्रक्चर मस्क्यूलेचर के अंदर बोनी फ़िश का। अब देखिए क्या है कि बोनी फ़िश जो है वो इसमें कई फ़िशेस स्टेपल फ़िशेस हैं, एडिबल फ़िशेस हैं जो कि बड़ा पसंद की जाती हैं, क्योंकि उन फ़िशेस के अंदर जो मस्क्यूलेचर होता है वो बहुत अच्छा होता है कुछ फ़िशेस के अंदर, और फिर वो जो फ़िशेस हैं वो बड़ी जो है उससे टेस्ट ले लेके, मतलब वो एडिबल होती हैं और जो है पसंद की जाती हैं। जिसमें कि एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है लेबियो रोहेटा का, बोनी फ़िश में, है ना, जिसको रोहू कहा जाता है। बोनी फ़िश में क्या होता है कि दे हैव अ डुअल मोटर सिस्टम, नंबर 1। दूसरा, उनकी जो मायोमियर्स होती हैं दे आर वी शेप्ड, ठीक है, मायोमियर्स वी शेप्ड होती हैं, और उनमें जब भी नया फाइबर्स बनते हैं, मसल फाइबर्स बनते हैं, तो वो मसल फाइबर्स मायोमियर में डेवलप होकर के और कहाँ ऐड होते चले जाते हैं, इन दी पोस्टीरियर डायरेक्शन,
ठीक है। बोनी फिश के अंदर जब हैचिंग होती है फिश में, तो क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है उसमें एक शीद होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, शीद लेयर होती है, उसमें रेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो रेड मसल्स आर सराउंडेड बाय वाइट मसल्स। किससे सराउंडेड होती हैं? वाइट मसल से। अच्छा, अब क्या होता है कि जब थोड़ी थोड़ी उनमें ग्रो करने लगता है, क्योंकि क्योंकि मसल्स हैं वो तो ग्रो करेंगी करेंगी, हम हमारे में भी तो मसल्स ग्रो करती हैं कि नहीं करती हैं? बनाते हो ना, कई कई लोग बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और कंटिन्यूसली अपने भी मसल्स ग्रो करती हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जब मसल्स बाद में ग्रो करती हैं तो वो फ्लैंक में कंसंट्रेट होती चली जाती हैं, ठीक है। और बोनी फिश में भी क्या होता है, इनकी जो मसल्स होती हैं दे इंक्रीज थ्रू आउट लाइफ। तो इस तरह से आपको एग्नेथन्स में, कार्टिलेजिनस फिशेस में और बोनी फिश के अंदर जो ये डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर तो मसल्स का वही होगा, लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें भी ये फ़िश को ये काट करके बताया हुआ है, देखिए किस तरह से क्लियरली जो है मसल्स के अंदर स्ट्रिएशंस दिखाई दे रही हैं। So now we come to the end of part 3 of musculature in fish. 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगी, जिसमें अपन फर्दर क्या कैटेगरीज होती हैं मसल्स की और उनका फंक्शन क्या होता है वो फिर उसमें अपन पढ़ेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।